Hello everyone, welcome back. So in the last lecture we were solving the questions. We were solving the questions based on trigonometric identities. Okay. Now in this lecture we will continue the questions. Okay. Students, I solved some questions. Okay, some NCERT questions for you in the last lecture. Okay, that questions are very important. Okay. Now today we will have more questions that won't be based on that won't be only based on trigonometric identities. And see, this time question is going to be based on the combination of concepts. Combination of concepts, that means in the questions we will use the concept of complementary angles as well, identities, and also the trigonometric ratios. Okay, so let's start some questions. Okay, see, I hope I have given you homework in the last lecture. I hope you have completed your homework. Okay, this is going to be the second last class of trigonometry. Okay, see, let me start some questions. Okay, that is based on the combination of concepts and evaluate. Okay, we will combine the concept of complementary angles and trigonometric identities. Okay, that means questions are gonna be based on the whole trigonometry now. Okay, chaliye, let us take a question. Okay, suppose we have to calculate the value of an expression. Okay, and let me take an expression. Okay, see, ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले कराए भी हैं, बस अब अपन कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इट्स sec 29 degree. Okay, and the denominator it is cosec 61 degree. एक मिनट, sec 29 degree upon cosec 61 degree. Okay, many of you have observed that sec 29 upon cosec 61 because they are complementary relations. Okay, they are related complementary. The fraction is going to be 1. Okay, only. Why? Because I will change sec 29 as cosec 90 minus 29, so it will be equal to cosec 61, and numerator upon denominator when cancelled out, the answer is 1. Okay, बट क्वेश्चन इतना सा नहीं है, अभी तो क्वेश्चन की शुरुआत करी है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी करते हैं. ये है 2 cot, सपोज इट्स 80 डिग्री, देन इट्स cot 17 डिग्री. ओके, लंबा नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन चौड़ा होने वाला है. देखना आप, इट्स cot 45 डिग्री. ओके, cot 73 डिग्री, and then cot 82 degree, cot 82 degree. Okay, then minus 3 times, and in the bracket it is sine square 38 plus sine square 52. This is your expression. The value we have to calculate. Now students, question में कुछ भी नया नहीं है. Okay, बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और आइडेंटिटीज को एक साथ यूज करना है. चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. सी, sec 29 कैन बी रिटन एज cosec 90 minus 29. Okay, cosec 90 minus 29. Okay, and in the denominator it is cosec 61 only. Okay, plus 2 times it's cot 8. Now cot 8 and cot 82 both are complementary. Okay, 8 and 82 are the complementary angles, so we will combine them. Okay, हम इन दोनों को साथ में लेंगे. तो चलिए cot 8 को और cot 82 को साथ साथ ले लेते हैं. ठीक है, ये एक दूसरे के लिए ही बने. ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा. चलिए cot 17 और cot 73 की बात कर लेते हैं. ये है cot 17 डिग्री और प्रोडक्ट में साथ में है cot 73 डिग्री. ओके, एंड द फाइनल वन जो है वो cot 45 डिग्री को हमने छोड़ दिया था, तो उसको ले लें साथ में. ओके, माइनस 3. नाउ 38 एंड 52 दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है,
तो इनमें से किसी एक को चेंज करना बनता है। कराए हमने पहले ऐसे क्वेश्चन काफ़ी। तो इसको मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर 90 माइनस 52 डिग्री। ओके, अच्छा जब मैं यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करूँगा तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको कैपिटल ब्रैकेट बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा कैपिटल वाला ब्रैकेट बन गया। चलिए सॉल्व करें इसको। नाउ कॉसेक 90 माइनस 29 कितना बन गया? कॉसेक 61 बन गया। ये बन गया कॉसेक 61 अपॉन ये भी बन गया कॉसेक 61। ठीक है, प्लस ये बन गया हमारा 2 सी कॉट 8 कॉट 82। किसी एक को चेंज करना बनता है, तो कॉट 8 को चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज करेंगे कॉट 8 को? कॉट 8 को हम चेंज करेंगे tan 90 माइनस 8 में, क्योंकि कॉट थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा। नाउ कॉट 82 को नहीं छेड़ेंगे हमने बात करी थी पहले, किसी एक को ही चेंज करेंगे, दो कॉम्प्लीमेंट्री में से। चलिए 17 और 63 में से भी एक काम करते हैं, 17 को चेंज कर लेते हैं। ये बनेगा tan 90 माइनस 17। ओके, कॉट 73 को अब एज इट इज रहने देते हैं। कॉट 73 विल बी सेम, और कॉट 45 की तो वैल्यू बताया आपको 1 होती है। ठीक है, हमने पढ़ी थी ये वैल्यू, माइनस 3 टाइम्स सी इट्स साइन स्क्वायर 38 एंड 90 माइनस 52 इज गोइंग टू बी कॉस स्क्वायर 38। क्लियर? तो स्टूडेंट ये टर्म और ये टर्म कट गई, ये बन गया 1 प्लस 2 टाइम्स tan 90 माइनस 8 बन गया tan 82। ओके, cot 82। नाउ tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। ठीक है, 90 माइनस 17 इज 73 एंड इट्स cot 73 सी, और ये इंटू में 1 है, माइनस 3 टाइम्स इट्स साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38। ना ये तो आपको आइडिया लगी गया होगा 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है तो 1 होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली 1 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसको इसी स्टेप में अपन 1 लिख लेते हैं। आई एम यूजिंग दिस डिजिटल बोर्ड फर्स्ट टाइम। ओके, धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाएगा। चलिए देखिए, इट्स 1 प्लस 2। नाउ सी tan थीटा इंटू कॉट थीटा, डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, और बेटर है कि आप कॉट थीटा को एक बार 1 अपॉन tan थीटा लिख के बता दें। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कॉट 82 को 1 अपॉन tan 82 लिख रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली tan 73 एज इट इज, और इस वाले कॉट 73 को मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन tan 73। बोलो भाई, नो प्रॉब्लम? ठीक है, ओके, 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो 1 ही रहने वाला है, और माइनस का 3। इससे हुआ ये तुमसे हम कैंसिल और हमसे तुम कैंसिल। तो देखो ये 2, ये सब मल्टीप्लाई में है ना, इनके बीच में ऐसे डॉट डॉट लग रहे हैं। डॉट डॉट का मतलब आप समझे मल्टीप्लाई है, इनके बीच में सब में क्या है? मल्टीप्लाई। तो देखो ये क्या बना 1 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, तो ये टोटल 2 ही रहेगा, और माइनस का क्या है बाद में 3 है, तो 1 प्लस 2 हुआ 3 माइनस 3, माई आंसर इज 0। सो द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज 0। बोलो भाई, समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिया अपन ने, नॉर्मल सा क्वेश्चन था जिसमें अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट को और किसके कॉन्सेप्ट को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट को अपन ने कॉम्बाइन कर दिया। ठीक है, चलिए लेते हैं और क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं अपन, जिसमें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे आपको वैल्यू निकालनी है, मान लो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ओके, प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। आपको लग रहा है कि यहाँ पर 5 5 के गैप में एंगल आ रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर मैंने 5 5 के गैप में ही एंगल लिए हैं। ठीक है, और जो मैंने लास्ट एंगल लिया है वो लिया है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, इवेल्युएट जो क्वेश्चन है, इवेल्युएट के अंदर सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे?
देखो सबसे पहले तो हम ढूंढते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। बताओ 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पर? 5 का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर 85 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 5 और 85 को ऐड करने पर 90 मिलता है। 10 का 15 डिग्री, 15 का सॉरी 10 का 80 डिग्री, 10 का 80 डिग्री, 15 का 75 डिग्री, ओके। 20 का 70 डिग्री, 20 प्लस 70 इज 90, ओके। 25 का 65। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, बट 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा क्या? नहीं, 45 डिग्री तो एक ही बार आएगा इसके अंदर बीच में। ऐसे ही 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 90 डिग्री भी एक ही बार आया है, ठीक है ना। 90 का कॉम्प्लीमेंट डिग्री थोड़ी ना हो पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 0 डिग्री होता है, बट 0 डिग्री तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कंबाइन करने की, तो साइन स्क्वायर 5 के साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर 85, ठीक है। इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। फिर अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर 10 की, तो इसका साथी कौन है? इसका साथी है साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है, तो इसका साथी कौन है? इसका साथी है साइन स्क्वायर 75 डिग्री, ठीक है, ये इसका साथी है। इस तरीके से अगर मैं सबको उनके साथियों के साथ लिखूं, ठीक है, तो डैश 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 करके मैं लिख देता हूं। देखो साइन स्क्वायर 40 डिग्री का साथी तो मिल जाएगा। साइन स्क्वायर 40 डिग्री का क्या है? साइन स्क्वायर 40 डिग्री का साथी साइन स्क्वायर 50 डिग्री, बट बेचारा 45 डिग्री अकेला रहने वाला है यहाँ, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री जो है वो मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख देता हूँ, समझ लेना आप लोग। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस और क्या रह गया था? एक रह गया हमारा साइन स्क्वायर 90। देखिए भाई, पहले 5 और 85 को ले लिया, फिर 10 और 80 को ले लिया, 15 75 को ले लिया, ठीक है। ऐसे ही 20 के साथ आया होगा, 70 25 के साथ आया होगा, ठीक है, उसका वाला 40 के साथ 45 50 आ गया, बट 45 डिग्री और 90 डिग्री अकेले रह गए। अब देखो ये सारे ब्रैकेट क्या बनेंगे? ये बनेंगे 1। कैसे? देखो सी आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। इट्स साइन स्क्वायर 5, इट्स साइन स्क्वायर 85 कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर 90 माइनस 85, cos स्क्वायर 90 माइनस 85, बोलो भाई, ये बन गया एक ब्रैकेट, ठीक है ना। सिमिलरली अगर इस ब्रैकेट की बात करें तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 80, बोलो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, क्लियर। एंड इन द सिमिलर वे इफ आई प्रोसीड सी साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, इसको भी लिख ही देते हैं, चलो। इट्स साइन स्क्वायर 40 प्लस इट्स गोइंग टू बी cos स्क्वायर 90 माइनस 50, 90 माइनस 50, ओके। नाउ साइन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 लिख दूं डायरेक्ट? चलो मैं लिख के बताता हूँ आपको। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और ये 1/√2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और ये 1 का स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, अब समझना ये है कि ऐसे ब्रैकेट कितनी बार एक्चुअली आए हैं। देखो ये बन गया साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5, ठीक है। फिर बन गया साइन स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 10, ये भी 1 बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, क्लियर। और ऐसे अगर हम बात करें तो ये भी बन गया हमारा साइन स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 40, ये भी बन गया 1। अच्छा, इसके बाद 1/√2 का स्क्वायर बनेगा 1/2, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, अब देखना ये है कि कितनी बार ये ब्रैकेट्स आए होंगे 1 1 वाले, ठीक है। तो देखो 5 10 15 20 25 30 35 40, मतलब 40 लास्ट आया, क्योंकि 40 का कॉम्प्लीमेंट आपको 50 मिल गया, ठीक है ना। 5 के साथ अपना 85 कंबाइन हो गया, 10 के साथ 80 कंबाइन हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो देखा जाए तो 5 से 40 तक, 5 से 40 तक कितने मल्टीपल हुए? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 8 मल्टीपल हो गए। तो ऐसे 8 ब्रैकेट आ गए एक्चुअली, 5 10 15
20, 25, 30, 35, 40, ठीक है ना, हो गए 8, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 1 + 1 + 1 8 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक हाफ है और एक 1 है। अगर इसमें 8 को ऐड कर लो तो देखो 9 टाइम्स तो 1 हो गया और एक हाफ हो गया, तो जो मेरा आंसर आने वाला है वो आने वाला है 19/2, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9.5 भी लिख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 of today's class. Now let me take more questions. चलो, ये तो हमने क्वेश्चंस लिए थे किस पे बेस्ड, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के को कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए थे। एक होमवर्क देते हैं इसके लिए आपको, चलिए एक होमवर्क दे देते हैं इस टाइप का, एक होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं इसी का, फिर आपको मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन ये है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप लोग सब मुझे व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन सेंड करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने से जुड़े हुए हैं अभी। सी a + b = 90 डिग्री है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, गिवन आपको गिवन है कि a + b की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको एक रिजल्ट प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, एक रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो चलो बड़ा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कुछ ऐसे है, इट्स 10a × 10b, ओके, प्लस 10a × cot b, okay, 10a × cot b, and in the denominator it's sin a and sec b, sin a and sec b, okay, and यहाँ एक माइनस का साइन है, यहाँ पर है sin स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a। आपको ए और बी में रिलेशन दे रखा है, ठीक है। हिंट दे देता हूँ मैं, ए और बी में रिलेशन दे रखा है, आप इस रिलेशन का जरूर यूज करें इस क्वेश्चन में, ठीक है, तभी आपसे क्वेश्चन होगा। एक बार मैं इसकी स्क्वायर रूट की डंडी को ठीक कर दूँ। कंप्लीट जो है वो रूट के अंदर है, और आपको ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट पूरा इक्वल प्रूफ करना है कि रिजल्ट इक्वल होगा 10a के। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड में आपको 10a, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपको 10a के इक्वल बनाना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क हुआ, ठीक है। ये हो गए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, combination of the trigonometric identities and complementary angles. Now we will have some more good questions, and in that questions we will be using algebraic identities, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस देखो, हमारा ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो वैसे कंप्लीट हो चुका है, बट हमारा जो अब काम है वो मेनली वर्क है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है यहाँ पर, ठीक है ना। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके नए क्वेश्चन को सही से अप्रोच लगा के अटेम्प्ट करने के, ठीक है ना। करेक्ट अप्रोच के साथ तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, जबकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इनफ हो जाने वाली है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन, देखिए अब आप क्वेश्चन देखिए, बढ़िया बढ़िया। सी फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू प्रूव अ रिजल्ट, प्रूव दैट, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, I have to prove that the value of sin raised to the power 4 theta plus cos raised to the power 4 theta
and this value is going to be equal to the 1 minus 2 sin square थीटा and cos square थीटा। ठीक है, चलिए ये प्रूफ करना है अपने को। अब देखो कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा करें। देखो लेट अस स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड काम करते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड को लिखूँ मैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा। नाउ स्टूडेंट्स ऐसे एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं अपन? आपको अगर 9th क्लास में आइडेंटिटी याद हो, ठीक है, तो 9th क्लास की आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। पहले मैं इसको 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? आपको पता है these two power when gets multiplied they will be equal to 4। okay, 2 to the 4। now see यहाँ पर हमको राइट हैंड साइड में 1 बनाना है। देखो 1 बनाने का एक ही तरीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बने। अच्छा, अगर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करें, देखो हमने 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, मैं लिख दे रहा हूँ आइडेंटिटी। वी नो द आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो अगर मैं इस माइनस 2ab को इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये एक्चुअली हमारी कौन सी आइडेंटिटी होती है? ये होती है हमारी ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी कौन सी होती है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो बस वो जो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी थी, उसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा वो करके अपन ने ये आइडेंटिटी बना ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से मतलब राइट हैंड साइड से ट्रांसपोज करके अपन ने ये नई आइडेंटिटी बना ली। चलिए, तो ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अगर हम यहाँ कंपेयर करें a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा लें, ठीक है, तो और ये आइडेंटिटी अप्लाई करें। देखो a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या बनेगा? इस आइडेंटिटी से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा मतलब a प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब b का होल स्क्वायर। देखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर जो ए है वो एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा है। अगर आप आइडेंटिटी से कंपेयर करो तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को ए एज्यूम कर रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड माइनस 2ab आता है तो माइनस 2ab, तो ए बी बोले तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये बनेगा ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1, आर आइडेंटिटी, फेमस आइडेंटिटी, सबसे ज्यादा हमने इसे भी यूज करा है अभी तक हर क्वेश्चन में लगभग। आज के तो इसको यूज कर ही रहे अपन, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यू कैन कंपेयर राइट हैंड साइड हैज बीन derived. So since left hand side is equal to right hand side, we can say the result is proved. बोलो, समझ में आया? चलिए, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था अपन ने। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। होमवर्क इस पे ये हो गया। देखो अब आपको मान लो ये वैल्यू निकालनी है साइन रेस्ट टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर 6 थीटा। तो इस केस में आप क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। मैं इसका जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट है वो लिख देता हूँ। आपको इसको इक्वल प्रूफ करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दिमाग आपको लगाना है घर पे बैठकर कि कैसे हम ये रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 थीटा को कैसे लिखें? जैसे 4 को तो हमने स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया था, तो अगर पावर में 6 है तो अब क्या करें, ठीक है। ये आपके लिए चलिए, ये हो गया क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, ठीक है ना। चलो कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखो। अब आप एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखना आप। सी क्वेश्चन है
ये तो अपना होमवर्क वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नई स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। एक मिनट, इसको इरेज करना पड़ेगा। यस, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो अपन नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सी, क्वेश्चन इज लाइक दैट, इफ साइन थीटा प्लस, अब ये अच्छे क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन हो जाएगा। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, आपको गिवन है कि जो वैल्यू है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वो वैल्यू है 1, और आपको वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस्ट की पावर 4 थीटा की। एक्चुअली आपको इसकी भी वैल्यू 1 के इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है ना। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वी हैव टू प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज टू द पावर 4 थीटा इज ऑल्सो 1, ठीक है ना। ये भी 1 के इक्वल है, तो हमको ये भी 1 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। चलिए करें। करते हैं ये क्वेश्चन सी। हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं जो गिवन रिजल्ट है, ठीक है ना, और जो हमको प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है। तो सी, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, ये गिवन था हमें, ठीक है, ये रिजल्ट हमको गिवन था, ठीक है ना। अब अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ शिफ्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल में किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। बोलोगे क्लियर? नाउ साइन थीटा यहाँ से इक्वल आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा, याद है आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। आइडेंटिटी नंबर 1 का सब रिजल्ट था ये, ठीक है, साथ में लिखते चलेंगे तो बेटर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा के। अच्छा एक बार रिजल्ट में देखो, हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, सही है, साथ में क्या चाहिए, साथ में कॉस रेज़ टू द पावर 4 थीटा चाहिए। गुड। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको रिजल्ट नंबर 1 बोल देता हूँ, जो पहले वाला था ना हमारा, इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। सी, इसको मैंने बोला रिजल्ट नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ओके। एंड हमको क्या चाहिए, कॉस रेज़ टू द पावर 4 थीटा चाहिए। कॉस रेज़ टू द पावर 4 थीटा जब बन सकता है जबकि मैं यहाँ कॉस स्क्वायर को कॉस की पावर 4 बना लूँ, और वो कब पॉसिबल है, वो जब भी पॉसिबल है जबकि मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ऐसा किया जा सकता है, बोलो ऐसा किया जा सकता है ना। तो करते हैं ये चीज, हम स्क्वायर करेंगे अब दोनों साइड। ये साइन थीटा इक्वल था कॉस स्क्वायर थीटा के, और ये रिजल्ट हमको गिवन था। चलिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग both sides, what we get sin square theta is equal to cos raised to the power 4 theta, and say it's equation number 3. Now see, if I add equation number 2 and 3, if I add इक्वेशन नंबर 2 and 3, आप एक बार राइट हैंड साइड देख ले, हमको लाना क्या है, राइट हैंड साइड क्या, हमको रिजल्ट जो प्रूफ करना है उसको देख ले। हमको प्रूफ करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा, and it is only possible when I add these two equations, okay. So it's going to be equal with cos square theta plus cos raised to the power 4 theta. Cos square theta plus cos square theta are added, okay. See, मैंने करा क्या है, मैंने इक्वेशन नंबर 2 में 3 को ऐड कर दिया है ताकि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा। अच्छा मैंने राइट हैंड साइड को इधर लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और ये चीज इक्वल किसके है, ये चीज इक्वल है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
इक्वेशन नंबर 2 को 3 में ऐड किया है, ठीक है ना। देखो आप साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐड होंगे, ये आ गए, और किसके इक्वल होगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा के। अब आप ही देखें कि जब ये दोनों चीजें ऐड हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट तो हमको 1 के इक्वल गिवन था ना इक्वेशन नंबर 1 से। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4 थीटा ये वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी, और हेंस द रिजल्ट भी प्रूव्ड। और यही तो हमको प्रूव करना है, बोलिए समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेंगे अपन, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, सी वी आर गिवन दैट cos theta plus sin theta and this value is equal to the root 2 cos theta. This result is given to us, root 2 times cos theta. This result is given to us, okay. And we have to prove, we have to find the value of cos theta minus sin theta, or you may say that we have to prove that cos theta minus sin theta is equal to root 2 times sin theta. ये हमको प्रूव करना है। To prove, we have to prove this result. Okay. Now see, cos theta plus sin theta is root 2 times cos theta is given, and we have to prove cos theta minus sin theta is root 2 times sin theta. Okay. How we can solve this kind of questions? Okay. See, you just need to observe. We are given that cos theta plus sin theta, and we have to find cos theta minus sin theta. हमको cos थीटा प्लस sin थीटा गिवन है, और हमको cos थीटा माइनस sin थीटा फाइंड करना है। हम कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन में, ठीक है। हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि या देखो cos थीटा माइनस sin थीटा दो तरीके से आ सकता है, या तो हम cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर कहीं बना लें, मतलब जो गिवन रिजल्ट है उसको यूज करते हुए cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बना लें, या फिर हम cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बना लें, जिससे ये cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा दो फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए मैं किस तरीके से कराता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड पेपर के लिए, नॉट फॉर बेसिक पेपर, ओके। चलिए देखिए, गिवन रिजल्ट को यूज करते हुए हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स cos थीटा। ये हमको गिवन रिजल्ट था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल रखा है मान लो, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, ये रिजल्ट हमको लाके बताना है, ये जो रिजल्ट है ये लाके बताना है, cos थीटा माइनस sin थीटा। चलिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर स्क्वायरिंग ही क्यों कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसमें, और क्या करें जिससे कि ये cos थीटा माइनस sin थीटा बन जाए। cos थीटा माइनस sin थीटा बनाने के लिए कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, और मुझे ये भी पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उससे शायद मुझे कुछ आगे मिलेगा। तो देखते जाएं स्क्वायरिंग बोथ द साइड से मुझे क्या मिलता है। ये बनेगा cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, और रूट 2 cos थीटा का स्क्वायर बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो भाई रूट 2 का स्क्वायर 2, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, that means cos theta sin theta, and it's going to be equal to 2 cos square theta। आपके मन में ऐसा मतलब फीलिंग आ रही होगी कि सर फटाफट इस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को 1 लिख दो। हाँ बिल्कुल मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, बट उससे होगा क्या, अगर मैं इसको 1 लिख देता हूँ तो मुझे एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अभी भी ये एक सिंगल वेरिएबल, अभी भी इसके अंदर मुझे cos थीटा माइनस sin थीटा बनाने जैसा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। मुझे चाहिए माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, यही अप्रोच है, ठीक है। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 ना लिखूं यहाँ पर, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हर एक स्टूडेंट के दिमाग में यही आता है कि सर इसको पहले 1 लिखेंगे, क्योंकि हम इतनी देर से कर ही रहे हैं, इस आइडेंटिटी को 1 लिख रहे हैं, बट कुछ अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखो अगर मैं इस cos स्क्वायर थीटा को इधर राइट साइड में शिफ्ट कर दूं तो 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस का cos स्क्वायर। एक बार ढंग से देखते जाना, मैंने क्या करा है, मैंने इस cos स्क्वायर थीटा को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 2 cos स्क्वायर में से जब ये माइनस हुआ
तो ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अच्छा, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को भी इधर शिफ्ट करूं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से सब्ट्रैक्ट होके बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को भी राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इस साइड में बचा क्या, ये जो दूसरी साइड थी, इस साइड में बचा क्या, इस साइड में बचा हमारे पास 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा। नाउ यू कैन ऑब्जर्व a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा। बोलो भाई, cos थीटा माइनस sin थीटा, क्लियर। और ये इक्वल है 2 टाइम्स cos थीटा इंटू sin थीटा के। अब आप देख सकते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा का एक्सप्रेशन मिल गया मुझे, और cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू तो मुझे गिवन थी ऑलरेडी, तो मैं वहां से न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर सकता हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू यहाँ यूज करूं तो देखो cos थीटा प्लस sin थीटा की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर √2 टाइम्स cos थीटा, क्लियर। नाउ दिस √2 टाइम्स cos थीटा इट्स गोइंग टू बी इक्वल, सी it's 2 cos theta times sin theta. Okay, now we have to calculate the value of what, we have to calculate the value of cos theta minus sin theta। तो बाकी की टर्म्स को अपन राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो क्या बनेगा, cos theta minus sin theta is going to be equal to 2 cos theta sin theta upon √2 cos थीटा। अब cos थीटा कैंसिल, सी 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, है ना। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल होके एक √2 बच जाएगा। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी cos थीटा माइनस sin थीटा इज √2 sin थीटा। एंड यही तो मुझे प्रूव करना था, ठीक है। ओके, सो यस, हेंस द रिजल्ट इज ओके। अच्छा क्वेश्चन है, मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। और वो जो एक फोर्स फीलिंग होती है किस चीज़ की, कि इसको फटाफट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 लिखे, उस पर यहाँ पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो बेटरली सॉल्व होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक तरीका है, तरीके और भी हैं, मैं इसको रैशनलाइज करके भी कर सकता था, और भी तरीके हैं, बट आप इसी मेथड से जाएं, ठीक है ना। इट्स बेटर, एक बार आप प्रैक्टिस कर लें, मज़ा आ जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चंस करने में। चलिए एक बार अपन इस स्क्रीन को रब करके आपको इस स्क्रीन को क्लियर करके, वो आदत अभी बोर्ड वाली है, आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन आपका ये है आज का कि आपको गिवन है कि 7 sin स्क्वायर थीटा, इफ यू आर गिवन दिस रिजल्ट 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4। ये रिजल्ट आपको गिवन है, ठीक है ना। चलो आप लिख लेना बाद में गिवन, तो मैं केवल क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सी यू आर गिवन दिस रिजल्ट, ओके, कि साइन में 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, एंड यू हैव टू प्रूव वन रिजल्ट। एंड व्हाट इज द रिजल्ट, यू हैव टू प्रूव दैट tan थीटा, मतलब आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ प्रूव दैट, एक मिनट, प्रूव दैट या शो दैट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 1/√3। ये आपको ला के दिखाना है, इस रिजल्ट का यूज करना है और ये ला के दिखाना है, ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। छोटा सा अगर दिमाग लगा लिया आपने, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया तो फिर ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ठीक है। ये 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक और दे दे, ठीक है, लास्ट वन। आज की क्लास का भी ये लास्ट क्वेश्चन ही है, मतलब आपको होमवर्क में जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ वो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन सी, आपको गिवन है इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा दिस वैल्यू इज इक्वल टू m। आपको गिवन है कि वैल्यू इक्वल है m के, ठीक है ना। एंड यू आर ऑल्सो गिवन दैट द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, और आपको tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू गिवन है n की, ठीक है ना। मतलब आप tan थीटा प्लस साइन थीटा को m के इक्वल माने और tan थीटा माइनस साइन थीटा को n के इक्वल माने, एंड यू हैव टू प्रूव अ रिजल्ट। एंड व्हाट इज द रिजल्ट? प्रूव दैट, आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। सी, आपको प्रूफ करना है रिजल्ट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स रूट mn है, ये रिजल्ट लाके दिखाना है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन 4 मार्क्स में एग्जाम्स में आ सकते हैं, स्टैंडर्ड पेपर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क रहा आज का, ठीक है। इसी के साथ हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। ये मेरी फर्स्ट क्लास थी जिसमें मैंने डिजिटल बोर्ड यूज़ करा है, ठीक है। आई होप कि आगे से ये और ज़्यादा बेटर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड ऑल। सी x 3 cos square theta. Now you have to solve these two homework questions and the previously given questions, okay. So let us finish this class. Till then, take care, bye bye, see you.